of transformer, induction motor, and I told you how it is related to transformer also. There is a lot of similarities, so that's why I just explained. Okay, now just write down a numerical there. See, if you are remembering, before writing, let me tell. If you are remembering in the case of transformer, what you have seen there is in that from equivalent circuit diagram, you used to find out no load loss, full load loss, and then it was told at that time that using the equivalent circuit diagram, definitely the circuit will be simplified. We can easily calculate the losses of the induction motor, just like your transformer. Okay, transformer में भी हम बहुत easily वहाँ पर losses, no load parameters को लेके हम आयरन लॉस कैलकुलेट किया था और लोड पैरामीटर्स या इम्पीडेंस पैरामीटर को लेके हमने कॉपर लॉस कैलकुलेट किया था और फिर दोनों लॉसेस को लेके हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट किया था. सो फाइनली बाय यूजिंग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम वी यूज्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस ऑकर्ड इन द ट्रांसफार्मर एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द efficiency of the machine. So the same thing can be used in the case of induction motor. You can use the parameters of the equivalent circuit diagram for calculating the losses as well as the efficiency of the machine. So that means the equivalent circuit diagram parameters are related to your different losses and efficiency. Okay, so sometimes the numerical which will be asked under this equivalent circuit diagram will be also related to your power stages. Okay, तो दोनों मिक्स होके भी आता है. ये कुछ पैरामीटर्स दिया होगा, फिर उसको कैलकुलेट करना है. अच्छा, if you are remembering, there was short circuit test and open circuit test in case of transformer. The same here also. यहाँ भी आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम बोलते हैं फुल लोड टेस्ट. समटाइम्स हियर इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर इट इज नोन एज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट. व्हाट इट इज नोन एज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट. ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का क्या मतलब है कि you are just blocking the rotor of the you are not giving any chance to rotate the rotor. अभी आपने सप्लाई दिया, सप्लाई देते वक्त आप अगर रोटर को पहले से पकड़ के रखेंगे तो घूमेगा नहीं. वो नहीं घूमेगा तो इट इज एज गुड एज नोन एज शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर. क्या होता है कि जैसे कि आपने स्टॉप करके रखा है, थोड़ा भी वोल्टेज दिया तो हाई करंट विल फ्लो इन केस ऑफ ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट. नाउ व्हाट हैपेंड इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर? Short circuit test of the transformer, in that what you are doing, short circuiting the secondary and giving a controlled voltage to the primary side by through the dimmer start giving 0, 1, 2, 3, 4 like that. You go on increasing the voltage input to the transformer, and at the same time there was an ammeter connected in the primary side or secondary side, and just you are observing the current of the ammeter. Once that current reaches to the full load current, you stop increasing the voltage and take all readings, if you are remembering. So it is very important that you must understand and you must remember short circuit test and open circuit test for transformer as well as induction motor. And these two machines will be always there in front of you when you will be going for working in a core area, in a core company where all these things will be important inside. Okay, every time you may be a maintenance engineer, you may be, have a particular area to control where a lot of electrical machines will be there. Okay, so see, production department will be different, but electrical maintenance department will be different. So you engineers will be working there. You will be looking after those electrical machines. You have to see the routine test and all those tests, whether the machine is okay or not. So you must be knowing the theory behind it. Okay, so when you are talking about short circuit test, in that
you are short circuiting the secondary and giving a controlled voltage through a thermostat to the input, and gradually you are increasing. It is not that at a time you are giving the full rated voltage. Remember, short circuit test must be done under supervision. अगर किसी को आइडिया नहीं है तो फट करके जाके नहीं कर सकता. अंडर सुपरविजन का मतलब है कि ये हैव टू बी वेरी केयरफुल. Okay, so if you will be giving the full supply voltage, then everything will be burned. Okay, everything will be, because the current in the secondary will be very high in the primary winding also. So directly the winding will be burned. Okay, so you cannot afford that because it is a costly matter. Okay, so just you will be destroying the machine. So you have to be very particular when you are going for the short circuit. What can you do? Only it is only you can do that a rated current you will be trying to flow in the machine. आप क्या कर रहे हो? एक rated current flow कराना. Rated flow करने के लिए normally क्या होता है कि एक machine जब full load condition में काम करता है तो rated current flow होता है. Rated current मतलब full load current. तो full load current अगर ले लो कि 15 एम्पीयर है, किसी एक मशीन का 15 एम्पीयर है, आप उतना ही लोड दोगे. एक बार लोड दे के 15 एम्पीयर हो गया तो उससे और ज्यादा लोड नहीं दे सकते. ठीक है, तो 15 एम्पीयर में आप रुक गए. रुक जाने के बाद क्या हुआ, जो भी कुछ कंडीशन है यहाँ पर, तो आपको समझ में आया कि ये पूरा रेटेड मशीन है. अभी जो भी कुछ रीडिंग्स है वो सब रेटेड रीडिंग, मतलब फुल लोड रीडिंग. अच्छा, व्हेन यू विल बी इन ए प्रैक्टिकल, व्हेन यू विल बी एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, you don't have the load through which you can control the voltage. You can control the load current, because वो particular load आपके पास available नहीं रहेगा जो करेक्टली उतना ही करंट फ्लो कराएंगे. तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट्स तैयार हुआ है. एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप शॉर्ट सर्किट कर लो, करने के बाद वहां पर धीरे धीरे एक वोल्टेज दे दो, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करो. At the same time, there is a voltmeter and there is an ammeter in the primary side, and there is a wattmeter also, because the minimum requirement of short circuit test is your voltmeter, ammeter, wattmeter. तो ये तीनों आपके आगे लगा है, तो आप वोल्टेज इनपुट दे रहे हो, वोल्टेज देख रहे हो 1 2 3 4 बढ़ते जा रहे हैं, और उसी टाइम पे अगर you will be observe the ammeter, you will find that ammeter is showing फटाफट करंट इसका दिखा रहा है with a very small voltage, whereas the rated voltage is 400 volts for 3 phase and for single phase it is 230, but with a 10 to 20 volt you will find that the ammeter is showing the rated 15 ampere current. Whatever I told, 15 ampere 15 ampere is an example I told. Let us take the rated current is 15 ampere of a machine. So once you will be providing a small voltage and you will be seeing that the ammeter is showing 15 ampere, stop increasing the voltage. Stop. I'm talking about the procedure of the practical. The same practical we are going to do in the lab also for induction motor also. हम उसको ब्लॉक करके रखा है, छोड़ नहीं रहे, उसको पकड़ के रखा है. पकड़ के नहीं रखेंगे, वहां पर हम अपने पास बेल्ट ड्राइव है, बेल्ट ड्राइव से हम उसको टाइट कर लेंगे, पूरा उसको घूमने ही नहीं देंगे. तो रुक गया हो, लेकिन हमने सप्लाई तो दिया है, धीरे धीरे सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं. वही प्रोसीजर है, the same procedure which is written in short circuit test of transformer, same here. The only thing is there you have short circuited, here you have blocked. तो ब्लॉक किया मतलब शॉर्ट सर्किट. मैकेनिकल नेम अगर हम उसका इलेक्ट्रिकल नाम बोलेंगे, मैकेनिकल नेम ब्लॉकिंग, इलेक्ट्रिकल नाम शॉर्ट सर्किट. इलेक्ट्रिकल में तो हाथ में जाके कुछ ब्लॉक करना नहीं है, इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट कर देना. ओके, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी रेटेड करंट फ्लोइंग इन द एमीटर. मैं साइमल्टेनियस दोनों के लिए बोल रहा हूं. जैसे कि वो करंट दिखेगा, पहले से तुम्हारे पास कैलकुलेटेड करंट रहता है, या तो उसके मैनुअल में रहेगा कि 15 एम्पीयर है, उसका रेटिंग 13 एम्पीयर है, 13.5 एम्पीयर है, 7 एम्पीयर है, व्हाटएवर इट इज, इट विल बी रिटन. अदरवाइज यू विल बी कैलकुलेटिंग by saying 5 kilowatt machine rated voltage is 400. You will be calculating what is the rated current. Once you have calculated the rated current, you have to see that at what time ammeter is showing that current. अब ammeter show कब करेगा? तुम्हारे पास तो लोड नहीं है कि मैं ये लाया, लोड लगा दिया और उधर 13 एम्पीयर करंट फ्लो हो गया.
तुम्हारे पास एक ही चांस है लैब में कि आप धीरे धीरे वोल्टेज को इंक्रीज करो। एक बार एमीटर आपको दिखाया 13 एम्पियर, जो भी कुछ कैलकुलेटेड तुम्हारा 13.5 है या जो भी कुछ है, उतने करंट पहुंच गया, काम खत्म। स्टॉप करना है, रीडिंग लेना है, एंड दोज रीडिंग इज नोन एज शॉर्ट सर्किट रीडिंग, blocked rotor test reading. Similarly, when you are talking about open circuit test, your secondary will be open, कुछ भी नहीं लगाने का, खुला छोड़ देना। खुला छोड़ देना मतलब इधर भी इंडक्शन मोटर में क्या है, वो अपने आप घूमता रहेगा, तुम कुछ नहीं करने, तो जो पकड़ के रखा था उसको छोड़ देना, कोई बेल्ट ड्राइव नहीं, कुछ नहीं, नो लोड हो गया। उस कंडीशन में ये तीनों का रीडिंग लेना है। इस टाइम पे क्या करना है, वो तो नो लोड करंट है, नो लोड करंट हमको पता नहीं, हम क्या करेंगे, सीधा फुल वोल्टेज देंगे, जो उस साइड का रेटेड वोल्टेज है। ले लो कि ट्रांसफार्मर अगर है तो ट्रांसफार्मर के दो साइड है ना, एक साइड में 230 है, एक साइड में वो 110 है या कुछ और है, तो जो रेटिंग है, जो साइड में तुम सप्लाई दे रहे हो, उसका रेटिंग चेक करो, उतने वोल्टेज पूरा छोड़ो। वही 3 मीटर्स है वहां, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड wattmeter is still there. Voltmeter will be connected parallel, ammeter will be connected series, and wattmeter will be connected parallel as well as series. दोनों में रहेगा, वापस वैसे ही लगा है, कोई वोल्टेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, सीधा पूरा वोल्टेज दे दो। ओपन है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओपन है ना पीछे, तो खाली घूमेगा वो, और अगर ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज तैयार करेगा। हम किसी को लगा नहीं रहे तो क्या टेंशन है, खुला तो है, ओपन है। सो whatever current will be shown in the ammeter with the rated voltage, reading of the ammeter, reading of the wattmeter is known as no load test reading. No load test reading. The same can be done for induction motor also. These are the two tests of, मैंने अभी कोई फिगर भी दिखाया नहीं तुमको, कुछ भी नहीं बताया, बट जस्ट एक ओवरऑल आइडिया दिया। फिर फिगर देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या है। आई विल बी शोइंग द फिगर आल्सो, कैसे होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर की जगह पे एक राउंड ये रहेगा, वहां पर सिंगल फेज सप्लाई की जगह पे 3 फेज सप्लाई रखेंगे। वाट मीटर सिंगल फेज की जगह पे 3 फेज वाट मीटर रखेंगे। वोल्ट मीटर जो लगाएंगे फेज टू फेज लगाएंगे, so that it will give you line voltage. एमीटर जो लगाएंगे किसी एक लाइन में लगाएंगे, 3 लाइन है वहां, तो किसी एक लाइन में लगाया तो वो लाइन वोल्टेज देगा। 2 लाइन के वोल्टेज बीच में वोल्ट मीटर लगाया तो वो लाइन वोल्टेज देगा। एंड 3 फेज वाट मीटर मींस इट इज 3 फेज वाट मीटर का इंटरनल कनेक्शन। तुम लोग मेजरमेंट पढ़ा है, मेजरमेंट में क्या है, 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर is the most reliable measurement of 3 phase power. सबसे reliable 3 phase power measurement is 2 watt meter method of measuring 3 phase power. Now what is that? 2 watt meter मतलब क्या है, 2 सिंगल फेज वाट मीटर को लेने का, 3 फेज है वहां पर 3 फेज का, किसी 2 फेज में लगाओ, तीसरे को न्यूट्रल बोल के सोच के पैरेलली कनेक्ट, और ये दोनों का रीडिंग W1 W2, W1 plus W2 is going to give you 3 phase power. उसका प्रूफ भी था वहां पर कि कैसे वो 3 phase पावर देता है। You must be knowing that everything is related. So ये जो अरेंजमेंट है, एक 3 phase वाट मीटर के अंदर यही अरेंजमेंट अंदर दिया गया, एंड इट बिकम ए 3 phase वाट मीटर। अंदर क्या क्या है, अगर किसने पूछा तुमको, एक 3 फेज वाट मीटर में और सिंगल फेज वाट मीटर में क्या फर्क है। 3 फेज वाट मीटर के अंदर 2 वाट मीटर मेथड यूज किया गया है, अंदर 2 वाट मीटर से। तुम अगर उसको चेक करोगे 3 फेज वाट मीटर को ऊपर से देखोगे तो तुमको 2 साइड दिखेंगे उसके, इधर एक का सर्किट है, इधर एक सर्किट है, बीच में आपका रीडिंग, कुछ कनेक्शन इधर होंगे, कुछ कनेक्शन इधर होंगे, और तुम उसको देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा अरे ये तो 3 फेज करना है, 2 वाट मीटर मेथड। Provided you must know what is 2 watt meter method. Understood? अगर ले लो कि तुम्हारे पास 3 फेज वाट मीटर नहीं है तो आप 2 वाट मीटर यूज करना, सिंगल फेज, और उसका कनेक्शन कैसा है,
For example, if I'll be going for the connection, I'll be just drawing it. You must know those. These are the basics. Okay, the symbol of normally when you are showing ammeter, it should be shown like this. This is very important. Horizontal. Whenever see, maybe किसी एक फिगर को अगर वर्टिकल रखा गया है तो उसका एमीटर भी वर्टिकल हो जाएगा, बट एक नॉर्मली उसका सिंबल क्यों ऐसा रखा जाता है? अगर वोल्ट मीटर दिखाया गया तो ऐसा दिखाया जाता है। क्यों? जो पेज अपने आगे रखा गया है, जो 2 डायमेंशनल पेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका डायरेक्शन है। फिर एक वॉट मीटर अगर है, द वॉट मीटर विल बी लुक लाइक दिस। The symbol of wattmeter is like this, having 3 terminals. Now this is called CC and this is PC. And this is your M, L and C. Okay, wattmeter में कभी-कभी MC शॉर्ट रहता है और कभी-कभी LC शॉर्ट रहता है। उस वाटमीटर में इंडिकेट किया जाता है। There is a manual through which you will be understanding that whether you are going for short circuiting LC or you are going to short circuit. ज्यादातर 99 केसेस में MC शॉर्ट रहता है, MC शॉर्ट रहता है। बट LC शॉर्ट किस में रहता है? LC शॉर्ट रहता है लो पावर फैक्टर मीटर्स में, LPF में। लो पावर फैक्टर मीटर्स में LC शॉर्ट रहता है। लो पावर फैक्टर मीटर नॉर्मली नो लोड टेस्ट के टाइम लो पावर फैक्टर मीटर से यूज होता है, क्योंकि पावर बहुत कम रहता है, इसलिए ना नॉर्मली LPF मीटर्स जो है ना, तो ओपन सर्किट टेस्ट के लिए यूज होता है। बट एक्यूरेसी के लिए दोनों LPF मीटर्स यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में, नॉट इन इंडक्शन मोटर। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर LPF meters are used for going for test, short circuit and open circuit test. ठीक है? These are some very important and general knowledge which you must know. Is that clear? Yes? Okay. So these symbols are important. Always when you are telling ammeter is connected through. Ammeter connected through. When you will be writing you are writing like one theory you are writing down for a circuit. Always ammeter follow the word through. Ammeter is connected through. Voltmeter is connected across. ये wording आता है उसके पीछे। ध्यान में क्यों ऐसा? Across means parallel, through means series। एक मीनिंग आता है। तो एमीटर को फॉलो करता है थ्रू वर्ड और वोल्टमीटर को फॉलो करता है अक्रॉस। क्यों ऐसा बोल रहा है? Whenever you are writing something, you must know voltmeter is connected across. Volt is connected through नहीं लिखा जाता। Through means it is. Always remember, ammeter cannot be inserted when it is live. जब कोई एक सर्किट लाइव होता है, वहां एमीटर सर्किट को कट करके अंदर रहता है। एक्चुअली एमीटर शॉर्ट सर्किट करता है। एमीटर ना एक वायर को कट करके लगाया तो ही करंट फ्लो दिखेगा उसको, तो करंट एमीटर के अंदर फ्लो होता है। वोल्टमीटर कैन बी कनेक्टेड एट एनी टाइम व्हेन इट इज वर्किंग, व्हेन इट इज नॉट, व्हेन इट इज लाइव और इट इज नॉट लाइव। ले लो कि यहां पर एक काम चालू है, आप वोल्टमीटर लगा के सीधा सीधा वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अक्रॉस, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। बट एमीटर जब आप सर्किट को कट करते हो तो सर्किट उधर बंद हो जाता है, तो सर्किट स्टॉप करके एमीटर को लगाना पड़ता है और फिर रीडिंग लेना पड़ता है। तो बी केयरफुल फॉर दैट, ये भी पता होना चाहिए। वी हैव नाउ क्लैंप मीटर्स। करेंटली वी हैव क्लैंप मीटर्स। तो क्लैंप मीटर्स में क्या है? लाइव को हम उसका ये है। क्लैंप मीटर कैसे बनता है मालूम है? डू यू नो? क्लैंप मीटर के अंदर सीटी है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर। सीटीपीटी सुना है? तो सीटी क्या करता है? उसका जो वाइंडिंग है ना, उसके अंदर डाल देते हैं वो कॉइल, वो जो ऐसा देख रहे हो ना, ऐसा उसके अंदर वायर्स है, तो तुम अंदर डाल दिया तो अंदर के करंट वो मेजर कर लेते। सीटी को भी स्टडी किया तो तुमको समझ में आएगा। सीटी इज रिलेटेड टू योर क्लैंप मीटर।
ठीक है? सो very important information is needed for you to understand. Okay, so I'll give a numerical to you. ये जो टेस्ट वगैरह है ना, ये सब टेस्ट भी उसको यूज करके फिर आपको न्यूमेरिकल्स बाद में यू हैव सर्कल डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट सर्कल डायग्राम. ओके, सो दैट आल्सो विल बी सॉल्विंग राइट नाउ. और एक पॉइंट रह गया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम तो हो गया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन देयर. जस्ट एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मैक्सिमम पावर आउटपुट की कंडीशन. ओके, राइट डाउन. Write down. When the equivalent load resistance is equal to the when maximum power output, when the equivalent load resistance is equal to the standstill leakage impedance of the motor, when आपने क्या लिखा स्टार्टिंग से? ऊपर हेडिंग क्या दिया? मैक्सिमम पावर आउटपुट. नीचे कहां से शुरू किया? ऐसा लिखा है क्या? द पावर आउटपुट इज मैक्सिमम. स्टार्टिंग में नहीं लिखा है ना, तो ऐसा करो. When the equivalent load resistance is equal to the standstill leakage impedance of the motor, the power output will be maximum. Power output will be when the equivalent load resistance is equal to the standstill leakage impedance of the motor. The power output is maximum. Underline करो उसको, power output is maximum. ठीक है? और वहां क्या करो, इक्वेशन लिखो, RL इज इक्वल टू Z01. 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 नाउ व्हाट इज द मीनिंग? ये का इसका क्या मतलब है? आपने एक फिगर मैंने लास्ट को आपको उस दिन बताया था कि इधर वाज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, देन आपके लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, ये आपके फाइनल डायग्राम में यहाँ पर आपका वो पैरेलल सर्किट भी था. और अगर हम नो लोड सर्किट को जस्ट लाइक योर ट्रांसफार्मर, इफ यू विल बी नेग्लेक्टिंग, अगर आपके नो लोड सर्किट विल बी नेग्लेक्टेड लाइक ट्रांसफार्मर, आपके ट्रांसफार्मर के जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ना, उसका लास्ट डायग्राम जो है, वो लास्ट डायग्राम में ये जो पैरेलल सर्किट था ना, वो नहीं है. अगर ये इट इज नेग्लेक्टेड, अगर ले लो कि वो नेग्लेक्टेड है, तो क्या रह गया? R0 1 रह गया, X0 1 रह गया, और इसको कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? इट इज Z0 1. ठीक है, इनके सब इक्वेशंस तो आपको पता है, पहले ही बताया मैंने. R0 1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश. सिमिलरली X0 1 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 डैश. डैश का मालूम है आपको, उधर के वैल्यू में k स्क्वायर डिवाइड करो. सेकेंडरी वैल्यू में कोई भी डैश वैल्यू सेकेंडरी वैल्यू से लेके प्राइमरी में डालने के बाद हम डैश देते हैं. तो डैश का वैल्यू क्या है? डैश मतलब आप कैसे लिखते हो? R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश. तो R2 डैश जो है वो R2 डैश इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय k स्क्वायर. R2 डैश नहीं, सॉरी, R1 डैश, क्योंकि उधर से हम लेके आए. 1 दिया था कि 2 दिया था? 1 प्लस 2 डैश, नहीं 2 है. ठीक है, तो सेकेंडरी वैल्यू को हम प्राइमरी में लेके आया, तो खाली एक डैश बिठा. ठीक है, तो डैश बिठाया तो
इसका जो रिलेशन है कि सेकेंडरी वैल्यू में k स्क्वायर डिवाइड करना हो जाता है। बाकी उसी समय में वोल्टेज करंट के भी रिलेशन तुमको मालूम है कैसे, अगर ले लो कि V2 बाय V1 लिखते हो तो I1 बाय I2 है ना, ये है कि नहीं। तो अगर ले लो कि आप V1 निकालते हो तो V1 निकालते हो तो इस साइड में V1 चला जाएगा और ये साइड अभी V1 इधर गया तो V2 इधर रहेगा, I2 बाय I1 है। बट व्हाट इज I2 बाय I1? इट इज V2 डिवाइडेड बाय K। उल्टा है, अरे K कौन सा है, ये वाला K है। अगर I1 बाय I2 है तो K है, I2 बाय I1 1 बाय K है। तो इसका मतलब है कि अगर वोल्टेज इस साइड में इस साइड को आया, secondary voltage if it is referred to primary, it will be divided by K. At the same time, if secondary current will be converted to primary side, it is multiplied by K. कैसे? You can see once again this I1 by I2 is equal to V2 by V1 is equal to K. Then if I will be writing I1, it will become KI2. ठीक है। अभी अगर ले लो कि मैं I1 निकालता हूं, सिमिलरली अगर ले लो कि मैं यहां पर लिखता हूं, ये हमने K इस जगह पे क्या हो गया, डिवाइडेड बाय K हो गया, उधर मल्टीप्लाइड बाय K हो गया। तो ये रिलेशन से आप खुद ही इसको याद नहीं रखना कि मैं उधर से इधर लाया तो मैं K डिवाइड करूं क्या K मल्टीप्लाई करूं, कुछ सोचना नहीं, याद कर लेना। अपने को जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो इक्वेशन है वो हमेशा ध्यान में रखना, फट करके ऊपर रफ में लिखना है। अब तुमको समझ में आया कि वोल्टेज को K डिवाइड करना पड़ेगा और किसी एक साइड को ही याद रखना, क्योंकि ज्यादातर काम हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी कन्वर्टेड टू प्राइमरी। एंड व्हेन यू आर टेकिंग सेकेंडरी टू प्राइमरी तो सभी चीजों को याद रखना। तो उसका उल्टा अगर पूछा तो उसके करेक्टली उल्टा लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप डिवाइडेड बाय K स्क्वायर ओमिक वैल्यू को कन्वर्ट करते वक्त आप डिवाइडेड बाय K स्क्वायर ले, इट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी। At the same time, if it will be converted from primary to secondary, it will be multiplied by K square. क्यों? उधर से इधर लाया आप डिवाइड करके, वापस उधर लेने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया तो ही कैंसिल होगा ना वो। So simple to understand. So just the reverse meaning you have to take. Okay, so if you are neglecting the no load parameters, then the figure will be only this much, and there is the RL. अच्छा, इक्वल आपको थेवेनिन्स थ्योरम स्टडी किया है आपने, ओके। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी स्टडी किया है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम पावर देन योर लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द इंपेडेंस ऑफ द नेटवर्क। इंपेडेंस ऑफ द, एक्चुअली उसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द लोड इंपेडेंस है। तुम अगर एसी में तुम देखेंगे तो चेक करो उसको, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का क्या मतलब है। इफ इट इज R plus JXL है, इट विल बी R minus JXL। अगर आपके एक वैल्यू आया 4 plus 5J एज इंपेडेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर, तो आप क्या बोल रहे हो, अभी सिंपली क्या लिखा है आपने, RL is equal to Z01 लिखा है आपने। अब जो कंडीशन लिखा हो क्या है, ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट व्हेन एक्चुअली यू विल बी गोइंग फॉर द कैलकुलेशन, you will be understanding that it is actually depending upon the complex conjugate of the impedance present in the network. Okay, complex conjugate याद है वर्ड? complex conjugate मतलब किसी भी complex नंबर के जो conjugate है वो उसका उल्टा है, जो reactive component है वो उसके साइन बदल देगा। मतलब अगर इंडक्टिव वैल्यू है, इट बिकम ए कैपेसिटिव वैल्यू। कितने चीजें याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें उतने इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी टाइम मिलता है, भले तुमको एक बहुत बड़ा सा चीज नहीं पता, भले तुमको बहुत सारे अभी आगे और कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो भी नहीं पता, लेकिन बेसिक पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, छोटे छोटे चीजें जो। और किसी इंटरव्यू किसी स्कूल जो जाते हैं ना, बहुत हाई लेवल में कोई नहीं पूछता, वो ये देखता है कि इसकी एटलीस्ट फाउंडेशन तो ठीक है कि नहीं।
सिंपल a प्लस बी उसको करने को आता है कि नहीं, और अपना a प्लस बी ये है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का a प्लस बी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखा जाता है, फेजर डायग्राम क्या है, ठीक है। मैं आज सिर्फ तुमको बेसिक इसलिए डिस्कशन किया कि अपने सिलेबस बहुत ही इसमें है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4th चैप्टर हार्डली और 6 घंटे में खत्म हो जाएंगे। बाकी बाद में जो है वो बहुत ही थियरी पार्ट है, थोड़ा थोड़ा है। 5th और 6th एक चैप्टर मैडम ले लेंगे, एक मैं ले लूंगा, तो हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3 और 4, 3 और 4 एक्चुअली तुम्हारे इलेक्ट्रिकल मशीन को कवर करता होगा, ठीक है। सो स्टॉप हियर। तो मैं क्या करता हूं, एक न्यूमेरिकल आज से डाल देता हूं, कल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।